everyone, this is Nerdy Neuron, and today I'm going to discuss the second part of synapses. So, as we have already discussed about the synapses, we have discussed about the definition of synapses and the types of synapses. So, in this video, I'll be focusing on the different types of synapses. तो कितने टाइप्स के साइनेप्सेस होते हैं? इट कैन बी केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस. साइनेप्सेस का बेसिक फंक्शन क्या है? इट कैन ट्रांसमिट द सिग्नल और नर्व इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल. इट कैन ब्लॉक द सिग्नल और एक्शन पोटेंशियल. इट कैन रिपीट the information between the different types of neurons, and also it can add some extra detail signal. For example, if this is a neuron, this is axon and synaptical endings. So this neuron will communicate with the next neuron. So this communication is exodendritic. Okay, so in this way this neuron is making synapses with the other neuron. So it is the communication between the neuron and neuron. It can the synapses can be the communication between the neuron and muscle also. So but here we are discussing the synapses between the two nerve fibers. So in this way it can transmit the signal, and this signal can be inhibitory or excitatory also. It can block the signal, and if it like this pathway, like this is the third neuron, it will keep repeating this sequence instead of going to the other neuron or towards the other direction. Okay, next, so these synapses, they can be chemical or electrical. So this chemical synapses, they are common synapses, like they are 99%. ये कितने परसेंट होते हैं? ये रेयर होते हैं और 1% होते हैं. Now as we have talked about this in earlier video also, ये किससे फैसिलिटेट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर से. और ये फैसिलिटेट होते हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद वन सेल टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन. नाउ देयर आर टोटल 40 न्यूरोट्रांसमीटर्स आर येट डिस्कवर्ड. अब यू कैन ऑल्सो नेम देम लाइक एसिटिलकोलिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है. I'm just writing the abbreviation. Try to understand this. GABA. GABA is GABA aminobutyric acid. Glycine, serotonin, and glutamate. इसमें से एक्साइटेटरी कौन सा है? यस, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है. एंड acetylcholine, norepinephrine, they can be excitatory inhibitory, it depends, but definitely this GABA and glycine, they are inhibitory. Yes, they both are inhibitory. They help to facilitate the inhibition. Now how these gap junctions are working? They have clusters of ion channels. Okay, so they communicate with the help of ion channels. Now this third most important point, and to differentiate the chemical and electrical synapses, is the conduction. Its conduction is one way. एक ही डायरेक्शन में कंडक्शन होता है इसका, and this is
बाई डायरेक्शनल। ऐसा क्यों होता है? एनी गेसेस? यू कैन राइट इट ऑन कमेंट ब्लॉक। सो ऐसा होता इसलिए है, वन वे कंडक्शन है, तो वन वे है तो इट विल बी मोर फोकस्ड एंड इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक गोल्स इन द नर्वस सिस्टम। ओके, तो इट विल बी फोकस्ड, गोल्स के लिए है ये, और स्पेसिफिक। तो व्हाट इट विल कंट्रोल? इट विल कंट्रोल दी मोटर एक्टिविटीज़, मेमोरी एंड सेंसेशन। On the other hand, about the electrical synapses, as it is bi-directional, तो अब ये किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? It can help to coordinate the activities of large interconnected neurons, that like these neurons are interconnected, और इन interconnected neuron में for generation of spontaneous subthreshold depolarization में ये हेल्पफुल है। These all lines are from the Guyton. Now, ये कंडक्शन इसका स्लो होता है और इसका कंडक्शन फास्ट होता है। स्लो एंड फास्ट कंडक्शन होने का कारण यही है कि जो दो साइनेप्सिस के बीच में जो साइनेप्टिक यहाँ पे जो गैप होता है, जैसे हम क्लफ्ट कहते हैं, यहाँ पे 200 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम का है और यहाँ पे कम होता है, इसलिए यहाँ अब गैप ज़्यादा है तो कंडक्शन भी स्लो है, एंड हियर द कंडक्शन इज़ फास्ट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पूरे सीनस में तो यही साइनेप्सिस होते हैं, एज वेल एज दी स्केलेटल मसल में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली कार्डियक मसल में इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस मिलेगा आपको, और स्मूथ मसल सेल्स में भी मिल जाएगा। Okay, so no need to revise this. This is a bit easy. Now, so this is the chemical synapse and the electrical synapse. So here you can also see some differentiating features. यहाँ पे intercellular gap कितना है? 20 to 40 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पे 200-300, इसलिए स्लो कंडक्शन है, और यहाँ पे फास्ट कंडक्शन होता है। नाउ दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दी साइनेप्सिस। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर होता क्या है कि इफ़ यू लुक अबाउट दी स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट हियर, तो हियर द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, सी द पर्पल कलर, दीज ऑल आर माइटोकॉन्ड्रियाज। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है यहाँ पे? हमें पता है सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट विल प्रोवाइड द एनर्जी, ओके, एनर्जी टू वर्क। तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी जनरेट करने का काम इसका सेम रहेगा। इसके पास में रेस्पिरेटरी चेन है, तो वहाँ से ये एस्टाइल ग्रुप, जो एस्टाइलकोलिन बनता है, तो एस्टाइल ग्रुप को डोनेट करता है और कोए को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो नाउ विल कम बैक टू अगेन हियर, लेट्स डिस्कस दी first this physiological anatomy of the AMN, abbreviated to anterior motor neuron. Its name suggests, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक न्यूरॉन होगा। इस न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर मोटर न्यूरॉन है ये। तो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन का की फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी इज लाइक कि इट कंटेन्स ऑल, लाइक ऑल अदर न्यूरॉन्स, इट हैज़ द सोमा एंड एक्सॉन। सोमा क्या है? सेल बॉडी है। अब यहाँ पर क्या होते हैं? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक न्यूरॉन है, छोटा सा न्यूरॉन है ये, ठीक है। तो एक न्यूरॉन होता है जो क्या कहते हैं, फर्स्ट न्यूरॉन होता है, और एक न्यूरॉन होता है सेकेंड न्यूरॉन होता है, मतलब एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो छोटे छोटे टर्मिनल्स हैं, जो मोर द विच लुक लाइक स्पर्म बट दे आर नॉट एक्चुअली स्पर्म, दे आर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो होते हैं वो टोटल हो सकते हैं 10,000 से लेके 2 लाख तक हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी डेंसिटी भी डिफ़र करती है। तो एज यू कैन सी हियर
डेंड्राइट्स पे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो दूसरे न्यूरॉन के हैं वो ज़्यादा हैं. लुक हियर 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 एज कम्पेयर टू द सोमा. तो यस, दिस इज़ ट्रू दैट about 80 to 95% ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ये जो ग्रीन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दी वेयर डेंड्राइट्स. किसके डेंड्राइट्स? अब ये डेंड्राइट्स तो नेक्स्ट न्यूरॉन है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक है. ओके और थोड़े से प्रेजेंट होते हैं, कितना बचा, 5 से लेके 20% तक प्रेजेंट होते हैं सोमा में. These all are the figures I have taken from the Guyton. Now, this transmission can be excitatory or can be inhibitory. Excitatory तब होगा जब इसमें excitatory न्यूरोट्रांसमीटर होगा, और inhibitory तब होगा जब inhibitory न्यूरोट्रांसमीटर होगा. अब ऐसे ज़रूरी नहीं कि excitatory न्यूरोट्रांसमीटर है तभी एक्साइटेशन होगा. ये इसकी पॉसिबिलिटी होना तब है जब जो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल था जो मैंने आपको दिखाया पहले ऊपर, वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो भी कैसे हों, एक्साइटेटरी हों, और यहाँ पे इनहिबिटरी हों. सो दीज आर द पॉसिबिलिटी. अभी जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन सेल है, ये बाकी न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में, उनसे कैसे डिफरेंट हो सकता है. अभी तक कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं, जस्ट टू रिमेंबर दिस लिटिल बिट ऑफ फिगर्स एंड डिजिट्स. कैसे डिफरेंट है ये? एक तो जो साइज़ होता है सेल बॉडी का या सोमा का, वो अगर बड़ा छोटा हो जाए, ठीक है, उससे डिफ़र कर सकता है. लेंथ, साइज़ एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट से डिफरेंट हो सकता है. ऑलराइट. और ऑब्वियसली बाई लेंथ ऑफ दिस एक्सॉन, अगर ये एक्सॉन की लेंथ डिफरेंट है तो डिफ़र करेगा. एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे भी ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं. तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन द ब्रेन. जो मिलियन ऑफ साइनेप्सेस बनते रहते हैं एवरी सेकंड में, और वो इसलिए डिफरेंट करते हैं बिकॉज सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. ओके सो कम बैक टू हियर. यहाँ पे अब देखिए, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, सारी कहानी स्टार्ट होती है. द होल स्टोरी बिगिंस विद द एक्शन पोटेंशियल, मीन्स डिपोलराइजेशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल मेम्ब्रेन विच इज़ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ओके, तो जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जैसे ही डिपोलराइज होगी, जब से एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगी अंदर से, तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, दे विल गेट ओपन. अभी ब्लू कलर के भाई साहब जो हैं कैल्शियम, ये अंदर आ गए. ओके, अब ये क्या कमाल करेगा कैल्शियम. कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का रोल क्या है? एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ एंटी इज न्यूरोट्रांसमीटर, तब से हम एंटी न्यूरोट्रांसमीटर को एब्रीवेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कैल्शियम एंटर. ठीक है, जितने क्या कहते हैं कितना क्वांटिटी न्यूरोट्रांसमीटर का है, उतने उतने नंबर ऑफ कैल्शियम एंटर करते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर. अब जितने भी कैल्शियम आयन एंटर कर गए हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, लाइक द एंटर्स, वो क्या करते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जाके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं उन्हें, मॉलिक्यूल्स से जाके चिपक जाते हैं, बाइंड करते हैं. ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं, वी कॉल देम रिलीज साइट्स. यहाँ रिलीज साइट्स जाके मतलब स्पेशल प्रोटीन से रिलीज साइट्स जाके कैल्शियम आके चिपक गया. अब क्या होगा, अब इसके बाद जैसे ही ईच एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा. और ये जो वेसाइकल्स होती हैं, ओके, ये जो वेसाइकल्स होती हैं ना, ये इसके अंदर जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन है. ईच वेसाइकल में कितना प्रेजेंट है, 2K to 10K, K मीन्स थाउजेंड्स पर वेसाइकल्स. ओके, सो दिस इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम.
अब जैसे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए तो ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं आकर किन से, ये जो यहाँ पे यू कैन सी द रिसेप्टर्स हियर, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी तो कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर रिसेप्टर प्रोटीन्स। सो दीज रिसेप्टर दे कैन बी आइनोट्रोपिक रिसेप्टर और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इट विल पास सम आयंस एंड डिपोलराइजेस द मेम्ब्रेन्स। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड मैसेंजर, तो इट विल वर्क थ्रू दी सेकेंड मैसेंजर। और सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, ये कोई आयंस नहीं होते हैं, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सेल के अंदर घुसते हैं और सेल के अंदर जाके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, like conversion of some molecules to another form of molecules, and in this way they also activate this postsynaptic membrane. Okay, so अब रिसेप्टर प्रोटीन्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, रिसेप्टर प्रोटीन्स, जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं इनका अगर हम देखें, स्ट्रक्चर देखें अगर इनका हम रिसेप्टर प्रोटीन्स का, तो कुछ भाग इनका कहाँ पर है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ, मतलब बाहर की तरफ है, कुछ अंदर की तरफ है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बाइंडिंग कंपोनेंट, ये बाइंडिंग कंपोनेंट है बाहर वाला, ठीक है, विजिबल। और अंदर वाला इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, कुछ नहीं है, ये सब एब्रीविएशन है विच आर ईजिली टू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रिसेप्टर प्रोटीन्स अगेन। तो क्या था, इसका बाइंडिंग कंपोनेंट है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट अंदर की तरफ, बाइंडिंग कंपोनेंट बाहर की तरफ होता है। अब ये कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं, या तो ये गेटिंग के थ्रू एक्टिवेट हो सकते हैं, गेटिंग यहाँ पे कोई इंडिया गेट नहीं है, गेटिंग इज जस्ट लाइक पासिंग थ्रू डिफरेंट आयंस। और दूसरा क्या है, क्या था, यस, मेटाबोट्रोपिक, जो कि किसके दम पे काम करेगा, सेकेंड मैसेंजर के थ्रू पे, ठीक है। इनका बॉस है सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। तो अब आइनोट्रोपिक जो है, आइनोट्रोपिक को हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं। आइनोट्रोपिक कितने टाइप के हो सकते हैं ये, अब आयंस तो दो ही तरह के होते हैं, कोई कैच ही नहीं यहाँ पे, कैटायंस हो सकता है और एनायंस हो सकते हैं, ऑलराइट। अब जो कैटायंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम प्लस प्लस, ओके। एनायंस, क्लोराइड आयंस, हमारा प्यारा क्लोराइड आयन। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब ये जो जितने भी हैं ये सारे एक्साइटेटरी हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट, अब तो सीएनएस पढ़ रहे हैं तो ये सब याद हो जाना चाहिए कि जब भी इनकी एंट्री होती है, लाइक सोडियम आयन जब एंटर करेगा पॉजिटिव आयन तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा टू एग्जीक्यूट द एक्शन। तो ये अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर का फिजियोलॉजी क्या होगा, ये इनसाइड से नेगेटिव होते हैं, वही सेम फिजियोलॉजी अगेन कि सोडियम नेगेटिव है अंदर, तो सोडियम जब पॉजिटिव आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और किसको रिपल करेगा, नेगेटिव को रिपल कर देगा। अब इसमें भी कैच ये है कि जब when the diameter of this channel increases to the size more than किससे, हाइड्रेटेड सोडियम से, हाइड्रेटेड है ना ये, तभी इट विल पास। एंड और दूसरा पॉइंट क्या था कि इट विल रिपेल द नेगेटिव आयन, जैसे कि दूसरे नेगेटिव आयन्स होते हैं। अब जैसे ये पास हुआ हाइड्रेट सोडियम आयन तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर आएगा जो कि कैसा होगा, एक्साइटेटरी होगा, एक्साइटेटरी होगा और वो इसको आके ओपन कर देगा, ठीक है। डिपोलराइजेशन हो गया, एक्साइटेटरी। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से ये थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, क्लोराइड के लिए ही है, क्लोराइड ही पास होगा यहाँ से, क्योंकि वो जो लार्ज हाइड्रेटेड सो कॉल्ड सोडियम पोटेशियम थे वो नहीं पास होंगे यहाँ से। और ये कैसा होता है, ये इनहिबिटरी होता है, ओके।
So this is all about the receptor proteins. In next video, I will discuss this phenomena, which is the second messenger. Okay, how it will act, and what are these inhibitory and excitatory factors again. So in this way, I have covered the synapses का 3-4 page, but still some pages are remaining. So I will be continue making video on the CNS one by one. Thanks for watching. Meet you in the next video.